Good evening, everyone. This is Dr. Shivangni Sareen on behalf of Dental Desk Academy, and I'm here to talk about the upcoming UPPSC 2026 exam for the dental surgeons. So, something about me before we begin. I hold a degree in maxillofacial surgery from the Government Dental College, Raipur. I have cleared UPPSC, Orissa PSC, and also Army Dental Corps, that is back in 2023. Currently, I'm serving in Odisha Public Service Commission and I'm posted in Sambalpur. I also have an experience from the Army College of Dental Sciences, Sikandrabad, where I was an assistant professor. And other than that, I also hold an All India rank of 229 in NEET MDS back in 2023 and a state rank of second in the state of Chhattisgarh. So, first of all, why exactly have we all gathered here today? We are here to talk about the upcoming UPPSC Dental Surgeon Recruitment Exam, which is set to be scheduled in 2026. Now, being a dentist myself, I always understand why a government job is so necessary. एक तो बार बार vacancies आती नहीं है, and whenever they come, the competition is so much that we should give our all, and we should definitely grab it. So 2026 is going to be a very upcoming year. It's going to be very exciting. Why? Because it is not only UPPSC, which is scheduled, but also there is a very high likelihood कि इस साल Haryana PSC, Punjab PSC, and also Orissa PSC will be scheduled. So याद रखिएगा, even though you are planning to only prepare for UPPSC, which is a very good opportunity to be honest, क्योंकि हमारी जो seats हैं total 157 vacancies आई है. Salary आपकी 7th pay commission के according होगी, where you will be a Group B officer and you will be having a permanent government job till the age of 60 or in some states till the age of 65. So to be honest, as a dentist, you really can't ask for a better opportunity. And eligibility wise, minimum we need to have a BDS degree with 1 year completed rotary internship completion certificate needs to be there. And the age limit is still 40 years of age. Now देखिए ये जो आपकी notification थी, this has come in on 22nd December. That is just 1 week ago. And जो last date है for the application, it is still 22nd of Jan. So if you are planning to apply, please don't delay anymore and you must act and apply at the earliest. Now सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो सिलेक्शन जो रहती है कैसे टाइप की रहती है. So see, सिलेक्शन के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया रहेंगे. The first thing जो आपको देनी पड़ेगी will be a screening test, जिससे आपका 75% जो इसमें आपका वेटेज रहता है and 25% it is according to the interview. So as I said, हमारी 2 hurdles है, the screening test and the interview. So today's topic, we will only be talking about clearing the screening test in one shot. So totally मैं बता दूं ये जो टेस्ट रहता है, this is for 120 minutes, that is 2 hours का टेस्ट रहेगा and आपके questions रहेंगे 150 questions. So upcoming slides में हम discuss करेंगे about how to go about it. So being an educator myself, हमेशा I have always followed this policy which you can see. This is called the golden circle. And if you all have read a book called Start with Why by Simon Sinek, शायद आप लोगों को इसके बारे में पता होगा. It means that हम लोगों को कोई भी blindly एक गोल को नहीं फॉलो करना चाहिए. हमको अंदर से दिल से सही डायरेक्शन में फॉलो करना उसको बहुत जरूरी है with a proper plan, and then only आपका गोल सक्सेसफुल रहेगा. So we have to start with why. So the first question which you need to ask yourself is, why do you want to crack it? So there might be many whys. For me, I always wanted a stable government job. I didn't want to have tension about a clinic. I never felt that I wanted to establish a clinic all by myself. So for me, coming to a secure job has given me a lot of perspective and growth in life. And I'm very grateful for this opportunity. So that was my why. Most of us as dentists, we again feel that even though we love our clinical roles,
अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, देर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टैग्नेशन, देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. सो यू हैव टू फाइंड योर वाई, एंड इफ योर वाई विल बी स्ट्रांग, आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द हाउ. आप कैसे इसको क्रैक करेंगे? what will be your strategy which will ensure success? Sometimes hota hai कि we might be very talented, we might be very good, but in a country like India जहाँ पे competition की कोई कमी नहीं है, हम जैसे talented लोग भी हजारों हैं. So आपका how, आपका preparation इतना आपको रेजर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपको सिलेक्शन आपका होने से कोई रोक ना पाए. एंड द लास्ट इज द व्हाट तो हम जानते हैं, हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए जिसमें हम अपना लव फॉर डेंटिस्ट्री भी कायम रख पाए एंड सीखते चलें, कभी हम निराश ना हो, कभी डिसअपॉइंटमेंट ना हो. एंड वी शुड बी गिफ्टेड विद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एंड सिंस एज आई सेड, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2026 इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. लास्ट 2-3 साल से हर स्टेट के पीएससी हो रहे हैं. For example, me, I belong to New Delhi, but I've come all the way to Orissa to have a job. So, this is our what? It is a golden opportunity. 2026 में at least 3 PSCs, possibility of 4 PSC exam is there. So you must grab it. Now let us talk about the preparation strategy. See, last time जो ये एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी में, that is back in 2023, जब नोटिफिकेशन निकली थी, within 4 to 5 months, approximately आप 5 months लेके चलिए, एग्जाम हो गया था. The same was for Orissa PSC. I remember I had filled the form back in 2023 April, and exams, ये दोनों एग्जाम सितंबर अक्टूबर के टाइम पे कंप्लीट कर दिए गए थे. रिजल्ट्स भी इनके बहुत जल्दी विद इन 1-2 months सब आउट हो गए थे. सो लेट्स से हम लोग दो टाइप की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज लाइक, लेट्स से बाय चांस अगर आप बस यूपीपीएससी का नहीं, आप पूरा साल लेके चल रहे, यू वांट टू टारगेट पंजाब पीएससी, यू वांट टू टारगेट ओडिशा पीएससी या हरियाणा पीएससी, तो अगर लेट्स से आपके पास 10 मंथ्स है, आपकी कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी? एंड सेकेंड केस जो हम डिस्कस करेंगे, लेट्स से हमारे पास 4 से 5 महीने ही है, तो आपकी कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी? सो देखिए, हम सब जानते हैं आवर बाइबल फॉर डेंटिस्ट्री इज योर डेंटल पल्स. सम ऑफ यू मे हैव यूज्ड डेंटिस्ट. जो भी वॉट एवर बुक यू प्रेफर, यू कैन गो फॉर इट. पर्सनली आई थिंक हमने ये बात बार बार सुन चुकी होगी, हमें रिविजन मिनिमम 5 to 6 टाइम्स करके जाना है. आपकी डेंटल पल्स एंड इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं, आपको मिनिमम 5 to 6 टाइम्स उसको प्रिपेयर करके जाना ही है. आइडियली अगर 7 to 8 टाइम्स आप टच कर सकते हैं, आपका कोई नहीं रोक सकता सिलेक्ट होने में. बट बाय चांस अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिवाइज इट 5 to 6 टाइम्स. नाउ प्लीज रिमेंबर, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, हम सबको डर लगता है. अगर मैं आपको लास्ट में बोलूं आपको 3 वॉल्यूम्स 4 वॉल्यूम्स डेंटल पल्स की रिवाइज करके जानी है एग्जाम से 10 दिन पहले, आप नहीं कर पाएंगे, एंड दिस विल लीड टू यू नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. I remember back in 2018 when I was an intern and I was studying so hard for my PG entrance exams. I was very confident when I went to give AIMS. This is back in 2018, I'm sorry. And when I went to give this exam, I thought कि मेरे को काफी आता है, I'll do well. But when I looked at the questions, I was blanking out. मुझे याद नहीं आ रहा था. I was getting confused. And that is the time when I realized how important revision is. देखिए, जैसे बोलते हैं कि डेंटिस्ट्री, हमारा मेडिकल सब्जेक्ट्स, ये सब समुंदर है. देर इज नो एंड, देर इज लिटरली नो एंड. तो सारा चीज कवर करना कभी भी पॉसिबल नहीं है. बट हमारे लिए क्या पॉसिबल है कि जो भी हम कर रहे हैं, हम इसको इतना अच्छा करें कि जो भी हम करके आए, हम उसको बिल्कुल 90% एक्यूरेसी से करके आए. सो याद रखिएगा, आपको बहुत नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है, एंड जो आप पढ़ रहे हैं आपको उसको याद रखना है. सो according to that, minimum, this was my personal plan. If you want, you can follow it. If time allows, you should definitely follow it. This is for those people who have just started recently, or who are not able to convert into good ranks, or some, if you are an intern and you're just starting out, or you have taken a drop, this is the ideal plan. So क्या करेंगे हम इसको 5 स्टेजेस में, इन 10 मंथ्स को हम 5 स्टेजेस में ब्रेक करेंगे. सबसे पहला जो स्टेज रहेगा वो आपके फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स हो सकते हैं. नाउ अगर आप 3 मंथ्स में कर लिए, दैट इज बेस्ट. फॉर मी पर्सनली आई हैड टेकन 4 मंथ्स. इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप अपनी डेंटल पल्स, जो आपकी बाइबल है या डेंटिस्ट, आप उसको खोलेंगे
एंड आप साइड बाय साइड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, आई एम बीइंग वेरी क्लियर, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रीइटरेट करेंगे। नाउ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कौन सी होती हैं? सो इफ आपने देखा होगा कि डेंटल पल्स के जो आंसर सेक्शंस होते हैं उसमें पीछे लिखा होता है कि रेफर टू शेफर्स थर्ड एडिशन पेज सो एंड सो। सो लेट्स से आप कोई टॉपिक, आप डेंटल पल्स पढ़ रहे हैं, आप रैंडमली एमसीक्यूज लगा रहे थे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट देर आर सम टॉपिक्स जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड देर आर सम टॉपिक्स जिससे परहैप्स जस्ट वन क्वेश्चन टू क्वेश्चंस कम अप। तो आपका काम है जिन टॉपिक्स से बार बार बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उसी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, प्रेफरेबली द सेम एडिशन जो पल्स बोल रही है, या एटलीस्ट द सेम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको रिफर करनी है। आपको उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, बिकॉज शायद हो सकता है पल्स में दे मे हैव आस्क्ड सम सेक्शंस बट दे हैव मिस्ड आउट। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि आजकल के जो एग्जाम्स हैं, वेदर इट इज नीट, INI-CET, they are not according to rote memory at all. You need to be very rich in concepts. एंड कॉन्सेप्ट तभी बनते हैं जब आप मेन किताब, आप मेन आपका सब्जेक्ट पढ़ोगे, एंड वो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज, अगर आप बस बुक्स पढ़ने बैठोगे, अगेन वो भी समुंदर है, उसका कोई एंड नहीं है। सो आपको स्मार्टली MCQ करके आपको समझना है, आपको टॉपिक्स अपने छांटने हैं कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा बार पूछा जा रहा है, इसके अंदर घुसा जा रहा है। उस टॉपिक को आपको रीड करना है बुक से। फिर आप अपने पल्स में, इफ यू लाइक या इफ यू वांट, यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। आपको बैक एंड फोर्थ चलते रहना है। सो 3 वॉल्यूम्स ऑफ पल्स हैं आजकल, शायद आजकल 4 भी आ गई हैं न्यू एडिशंस ऑफ पल्स में। आपको ये काम करते करते, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम द बुक्स, कमिंग बैक एंड फोर्थ, सॉल्विंग एवरीथिंग इन पल्स, एक एक चीज पढ़ना आपको टाइम लग जाएगा। सो यू कांट टेक टू मच टाइम, यू कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 months। इफ यू आर फास्ट यू कैन डू इट इन 3 months। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एग्जॉशन होगा, एंड द वर्स्ट थिंग इज यू विल थिंक कि मुझे चीजें याद हो गई हैं, बट आप रियलाइज करेंगे आपको मुश्किल से 20 से 30% ही रिटेन होगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, एंड दैट इज अ विन। Once these 4 months are done, we will go towards stage number 2. As I said, हमारे पास अप्रॉक्स टाइम 9 से 10 months का है, तो हम इसको स्टेजेस में बांट रहे हैं। अब जो नेक्स्ट 3 महीने हैं, अब आपने डेंटल पल्स एक बार पढ़ ली है, अब आपने पल्स पढ़ ली, आपने बुक्स अपनी देख ली। देखिए आपका काम क्या है, एज आई सेड, हम लोग भी इंसान हैं, हमको अपने आप को कम डराना है। एंड जब मैंने एम्स दिया था, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको रिविजन करना। रिविजन ऐसा नहीं कि आप पूरे साल रिविजन कर सकते, वो तो करना ही है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रैंक डिसाइड करेगा, दैट विल बी द रिविजन विच यू डिड इन द लास्ट 2 weeks। जो लास्ट 14 दिन में आप रिएट्रेट करके आप पढ़ लिए, बार बार आप पढ़ लिए, पूरे 14 डेज में, लास्ट 14 डेज में आपको पूरा सिलेबस 2 बार फिर से रिवाइज करना है। उसके लिए आपको सिस्टमैटिकली अपना कंटेंट, अपना वॉल्यूम ऑफ बुक्स कम करते जाना है। अगर आप 3 पल्स की वॉल्यूम आप सोच रहे हैं कि आप लास्ट 14 डेज में रिवाइज करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, बट इफ यू आर स्मार्ट यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो इन द नेक्स्ट 3 months इन योर स्टेज नंबर 2, आप क्या करेंगे, अब आपने पल्स पढ़ ली है, आपने कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, अब आपको बुक्स फिर से स्टैंडर्ड बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पल्स को बहुत अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, प्रेफरेबली इफ यू लाइक, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, आप किसी अपने दोस्त को पढ़ाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करेंगे, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू टीच समथिंग यू लर्न इट ट्वाइस। सो दिस इज द टाइम जब आप लिख लिख के याद करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ इज द टाइम कि आप टेस्ट सीरीज पे भी ध्यान रखेंगे। टेस्ट सीरीज आप देंगे एंड अपना पल्स को फिर से पूरा आप रिवाइज करेंगे। व्हेन यू विल बी डन विद दिस स्टेज, आपका रिकॉल जो आप बस 30% आप याद कर पा रहे थे, अब आपका 60%, 55% तक चले जाएगा। कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, चीजें और अच्छे से याद होंगी, क्योंकि आपने उनको डिस्कस किया है, आपने उनको पढ़ा है, आपने अपने सेंसेस सारे यूज करके लिखा है उनको, एंड आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको न्यूअर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, न्यूअर पैटर्न, न्यूअर टॉपिक्स का एक्सपोजर हो जाएगा। नाउ 4 + 3 7 months लिटरली जा चुके हैं। नाउ द टाइम इज वेरी टाइट, वी हैव लास्ट 90 days, वी मे हैव लास्ट 60 days। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। नाउ लेट्स से, एज आई सेड, आई हैव मेड अकॉर्डिंग टू 10 months, लेट्स से अब आपके पास 2 महीने हैं। वन मोर टाइम,
फिर से पल्स अब आप रिवाइज करेंगे। इस बार अब आप अपने पास बिल्कुल अब 2 मोटी कॉपी लेंगे, डायरी ले सकते हैं, और यू कैन टेक 3 गुड डायरीज, व्हाट्सोएवर यू लाइक। बार बार आई एम टेलिंग यू, आपको आपका मैटर कम करते जाना है। नाउ दिस इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप अपना पढ़ाई कम करेंगे, आप बस अपना जो रिकॉल, जो रिवीजन, जो रिवाइज नोट्स है, अब आपको इतना याद हो चुका होगा कि आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप रोड मैप्स बनाएंगे, आप अपने लिए निमोनिक्स बनाएंगे, आप अपने लिए फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। इनको आप 2 नोटबुक्स या 3 नोटबुक्स में आप इनको लिख देंगे इन दीज लास्ट 2 मंथ्स। टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा जोर का एक्सेलरेटर इस टाइम पे आप दबाएंगे, एंड धीरे धीरे अब आप पल्स को भी, वंस यू आर मेकिंग दीज फाइनल बिग कॉपीज, पल्स को भी धीरे धीरे यू कैन स्टार्ट कीपिंग असाइड। नाउ कम्स द फोर्थ स्टेज, विच इज जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जाम। सो नाउ वो जो आपने 2 या 3 कॉपीज बनाई हैं, उनको भी आप डाउन साइज करके 1 सिंगल डायरी में लेके आएंगे। एंड दिस इज जनरली द बेस्ट टाइम, लास्ट 45 डेज में ही आप वो डायरी बना सकते हैं। नाउ यू विल से कैसे, हाउ कैन आई congest 20 subjects, 21 subjects, 3-4 volumes of Pulse, so much knowledge from test series down into one diary. How is it possible? But it is possible because अब आपको काफी चीजें याद हो चुकी होंगी. For example, I was very strong in anatomy. I was good at ortho, but I was weaker in community dentistry. I was weaker in prostho. So ये जो आपकी master diary जो रहती है, this will be your own diary, जिसमें आपको रोड मैप्स आप लिखेंगे, आप निमोनिक ऐसे लिखेंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। यू डोंट नीड टू कीप रीडिंग ऑल दोज लाइंस फ्रॉम पल्स। भले ही आप क्वेश्चंस करते रहिए, आप एमसीक्यू करते रहिए, बट यू डोंट नीड टू रीड दैट बिग medical jargon, the big lines. You don't need to do all that. Trust yourself. You have worked hard. It is enough. So here I'm showing you my master diary. I made this diary back in 2018, and as you can see, this has so much of medical jargon. And as I said, your master diary is very customized. So जैसे मुझे मेरा anatomy strong था, मुझे anatomy इतना नहीं लिखना पड़ा, but community dentistry was always my weak part. Prostho was weaker, so I had to write a lot of mnemonics. Biochemistry I could not recall. Biochemistry was a subject जो मुझे लगता था लास्ट के 2 दिन में मुझे पढ़ना ही है. So all those enzymes and hormones जो हम भूल जाते हैं, the steps, all those I had jotted down, and this was my master diary. So 1 month before आप और questions करेंगे, टेस्ट सीरीज और देंगे, एंड आप अपनी मास्टर डायरी रेडी रखेंगे. And as I said, 1 month before the exams, this is something you need to keep doing. जो आपने 3 नोटबुक्स या 2 नोटबुक्स बनाई थी, उनको कंडेंस करके आपने 1 मास्टर डायरी बना ली. अब आप ना पल्स देखेंगे मुड़ के, ना आपको आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स देखनी है. And last come the last 14 days, which is the game changer. So this is the time you will say goodbye to everything else. You will only trust yourself. You will trust your master diary. इसको आप 2 बार रिवाइज करके जाएंगे. अगर 3 बार आप कर सकते हैं, सोचिए हमने कैसे डाउन किया. हमने 4 वॉल्यूम्स ऑफ पल्स, इतना सारा मेडिकल एमसीक्यूज वगैरह हमने विद इन 1 डायरी हम लेके आए. एंड दिस विल बी द टाइम, ये लास्ट 14 डेज में आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे. 2 टाइम्स अगर कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, 3-4 टाइम्स कर सकते हैं. तो अगर आप देखेंगे, हमने लिटरली पल्स को 5 to 6 टाइम्स हमने रिवाइज कर लिया है. इफ यू आर फास्टर, अगर आप ऑलरेडी बहुत तैयारी कर रहे हैं, आप 7 to 8 टाइम्स टच कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, nobody will stop your selection from happening. I was not even preparing after a certain point of time in 2023. I had given NEET and काफी time हो गया था. And then one of my friends said कि चलो Orissa PSC का फॉर्म भरते हैं. I filled it, and I was not regular. I was not studying. I was just teaching students here and there. And literally जब exam था, just 10 days before, I did not, I just took out my master diary. I read it 2 times, and I got an all India rank of 6th in Orissa PSC back in 2023, just by my master diary. So as I said, this has to be a secret of success. जब मैंने 2023 में नीट दिया था, after my PG, again my master diary was my best friend for my last 10 days, and I got a rank of 229. So as I said, this is the most important thing. This is the how. I told you in the beginning. I'll tell you that we have to start with why. ये हमारा हाउ है, हम कैसे तैयारी करेंगे. नाउ सिंस वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, वी नो दैट यूपीपीएससी मोस्ट लाइकली एग्जाम, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है, हमारा जो एग्जाम है 4 से 5 मंथ्स में होना है.
टेंटेटिवली अप्रैल मई में हो सकता है, अगर पॉसिबल है शायद थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए, बट लेट्स से अगर हमारे पास बस 4 महीने हैं और लेट्स से हम तैयारी करते आ रहे हैं, आपको इन स्टेज में क्या करना है, अब आपने इतना पढ़ लिया होगा, आपको वही अपनी मास्टर डायरी आपको धीरे धीरे तैयार करनी है। मैंने आपको बताया, देखिए हम लोग भी इंसान है, हमारा भी दिमाग है। अगर आप लास्ट में अपने आप को हाइपर करके जाएंगे कि 3 3 पल्स हमको पढ़नी है, आप कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बट यही अगर आपके दिमाग को हम बोलेंगे कि भाई एक ही डायरी है, उसको अच्छे से हमको पढ़ना है, अपना बेस्ट उस डायरी में देना है, यू विल गो टू द एग्जाम विद अ वेरी zen, very calm mode, and you'll definitely crack it. So again, I'm reiterating, last 14 days are the game changer. Remain calm. ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी कि ये मेरा छूट गया, वो मैंने नहीं किया, बस अपनी डायरी देखिए, अपने पे भरोसा रखिए, रिलैक्स होके जाइए। यूपीपीएससी किया, नीट, INI-CT, you will crack everything for sure. So now since we are talking about यूपीपीएससी, इस एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए एज आई सेड, ये 2 घंटे का एग्जाम रहता है, MCQ बेस्ड रहता है एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 30 आपके जीके बेस्ड जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस होते हैं, 120 आपके डेंटल के क्वेश्चंस होते हैं, एंड एज आई सेड नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आज का हमारा क्या काम है कि यूपीपीएससी में हम जो डीप डाइव करेंगे, एनालाइज करेंगे सिलेबस को कैसे पढ़ना है, एंड हम एक पर्टिकुलर क्लियर करिकुलम प्लान निकालेंगे। तो देखिए, यूपीपीएससी एज आई टोल्ड यू 150 क्वेश्चंस इसमें होंगे, जिसमें 30 आपके जीके क्वेश्चंस रहते हैं। सो यूपीपीएससी के जो डेंटल क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं, उनका लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है ना। यू में फील अरे ये तो बहुत अच्छा है, अगर इजी है मुझसे तो और हो जाएगा, बट आपको याद ये रखना पड़ेगा कि अगर आपसे हो जाएगा तो सबसे हो सकता है, क्योंकि मोर और सो ऑल ऑफ अस, कहीं ना कहीं हम लोगों की क्लिनिकल नॉलेज इज क्वाइट सिमिलर। All of us study very hard in the final year, so all of us have similar clinical knowledge, 19-20 का फर्क होता है। So what many of us do कि अरे जीके छोड़ो, कौन पढ़े, डेंटल पे ही ख्याल रखेंगे, बट मेनी टाइम्स जीके आपका टाई ब्रेकर क्वेश्चन हो सकता है। सो मैंने इन स्लाइड्स में 2018 एंड 2023 के पेपर्स को काफी डीपली एनालाइज करके आपके लिए एक सिलेबस निकाला है। सो सी, जनरल स्टडीज में एग्जैक्टली क्या क्या पूछता है। तो हमारा हिस्ट्री से काफी सेक्शंस आते हैं। हिस्ट्री से जनरली फोकस इज ऑन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एरा। इट इज ऑल्सो ऑन पोस्ट colonial era, how the legislation was. For example, key milestones, if you just have a look at my slides, back in 2020, that is 2018 में इन्हें रौलत एक्ट के बारे में पूछा था। They asked about various freedom slogans. सिविक्स की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमें राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमें पता होने चाहिए। राज्यसभा के बारे में अगेन 2018 2023 में क्वेश्चंस आए थे। पंचायती राज एवोल्यूशन, कब से पंचायती राज सिस्टम 1959 से स्टार्ट हुआ, एक बेसिक हिस्ट्री, बेसिक सिविक्स फाउंडेशनल नॉलेज हमारे पास जरूरी है। जीके के लिए फॉर यूपीपीएससी पर्सनली आई विल रिकमेंड दिस बुक कॉल्ड ल्यूसेंट जीके। ये कहीं भी आपको मिल जाएगी, इट इज ऑल्सो देयर ऑन Amazon। बट द थिंग इज, ल्यूसेंट भी काफी मोटी बुक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, सारे करने पॉसिबल नहीं होते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्लाइड्स, आप ऐसे छांट छांट के जो मैं आपको सेक्शन बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, पोस्ट कॉलोनियल लेजिस्लेशन एरा जो था, इन पे ज्यादा फोकस होता है। तो कम से कम आप ट्राई करिए कि ये वाले सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ज्योग्राफी के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ ज्योग्राफी में दे आस्क सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े मुश्किल हैं, परहैप्स यू मे नॉट बी एबल टू क्रैक देम, बट हमारा काम है कोशिश करना। तो नेशनल लैंडमार्क्स, स्पेशली जो न्यूज, जो करंट न्यूज में थे, आपको उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। रीजनल, अब देखिए आप स्टेट पीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं। नाउ एक चीज मैं बता दूं, you will not only be a dentist once you join these PSC exams. I'm so sorry, when you join these PSCs, you will be a public health dentist. There is a huge difference. ऐसा नहीं होगा कि आप एक दो पेशेंट देखेंगे, आपको मास में पेशेंट देखने पड़ेंगे, आपको कैंप्स करवाने पड़ेंगे। सो आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत डिफरेंट होएगा। एंड दैट्स वाई, सिंस आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टू हैव अ फंडामेंटल नॉलेज अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन runs in UP,
डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में नॉलेज, ये सब आपको करनी पड़ेगी। तो यूपी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी, थोड़े से एबरेंट ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वेयर दे मे आस्क यू स्टैटिस्टिक्स, दे मे आस्क यू एग्जैक्ट नंबर्स। इट इज डिफिकल्ट अगेन टू टोटली ट्राई टू गेट दीज आंसर्स करेक्ट, बट हम, एज आई सेड, हमारा काम है कोशिश करना। नेक्स्ट, सोशल इकोनॉमिक जो आपका फैब्रिक रहता है यूपी में कैसा है, आपको इसके बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो ज्योग्राफी में याद रखिएगा, स्टेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी आप थोड़ी पढ़िएगा, एंड नेशनल जो भी लैंड मासेस वगैरह हैं, ट्राई टू गेट एन आइडिया अबाउट देम, एंड एज आई सेड ल्यूसेंट इज अ गुड बुक टू स्टार्ट। देन नेक्स्ट कम्स योर इकोनॉमी। सो इकोनॉमी में करंट जो चीजें जो आपकी न्यूज में आ रही हैं, याद रखिएगा यूपीपीएससी के जो क्वेश्चंस जो रहते हैं, दे जनरली आस्क वेरी करंट नॉलेज बेस्ड। फॉर एग्जांपल अभी जब 26 जैन की परेड आने वाली है, यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू नो हु द चीफ गेस्ट वाज, कौन सी कंट्री के थे। सो एज आई सेड वेरी करंट, 2025 में क्या हुआ, 2026 में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। इकोनॉमी के हिसाब से जैसे हमारे फेमस जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, अमूल वगैरह की कुछ क्वेश्चंस आपके 2018 में पूछे गए थे। दे कैन ऑल्सो आस्क यू एग्रीकल्चरल वेराइटीज के बारे में इन यूपी। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस वाज बैक इन 2018, दे आस्क अबाउट द व्हीट वेराइटी जो यूपी में ग्रो करती है, कौन सा टाइप का एग्जैक्ट व्हीट है। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु आल्सो क्रैक्ड यूपीपीएससी, उनसे पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान कि मिलेट्स के टाइप बताइए जो यूपी में ग्रो होते हैं। सो एज आई सेड, स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, जो भी उस स्टेट के बारे में जो उसकी चीजें फेमस हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में हमारा कुंभ मेला होता है, अभी इतना बड़ा मेला हुआ था, यू शुड हैव स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट इट, समथिंग सिग्निफिकेंट जो उस दौरान हुआ। इसके अलावा जो जनरल साइंसेज हम बैक इन 2012 नीट यूजी के लिए पढ़ते थे, छोटी मोटी बायोकेमिस्ट्री, डीएनए के बारे में क्वेश्चंस, लोकल फ्लोरा फौना के बारे में क्वेश्चंस, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। एंड एज आई सेड, करंट सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक्स, जो आपके करंट सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स हुए, कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसका ओल्डर नेम वाज ट्रेन नंबर 18, ऐसी ऐसी चीजें अगर आप देखेंगे बैक इन 2018 का पेपर एंड 23 का पेपर, इट हैज बीन आस्क्ड, कुंभ मेला के क्वेश्चंस कैन कम, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो यूपी में है, यू विल हैव टू गो थ्रू इट, what UP government is doing for their welfare, the welfare of the population। अभी हमको पता है कि वर्ल्ड में टोटल जेरियाट्रिक पॉपुलेशन हो रही है, ओल्डर पॉपुलेशन हो रही है, उनके स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं स्पेसिफिक टू यूपी, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूपी में कोई प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, कुछ एक्सप्रेसवेज हैं, कोई स्टेट स्कीम लॉन्च की गई है, कुछ हेरिटेज साइट है। बेसिकली इन रिसेंट साइकिल्स, 1-2 साल के अंदर जो कुछ रिसेंट हुआ है, आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा। नाउ ये थी जनरल जीके की बात, एंड एज आई सेड, जीके का भी अगेन कोई अंत नहीं होता। एज डेंटिस्ट हम लोग इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, बट इफ यू कैन बी स्मार्ट अबाउट इट, जीके कैन बी अ वेरी गुड टाई ब्रेकर, राइट? इट कैन गिव यू द अपर एज इन स्कोरिंग बेटर। एंड याद रखें, 75% जो हमारा वेटेज है वो तो हमारा एग्जाम से ही है, only 25% is from the interview. So if you want to get a better rank, please do GK. Even if you are not doing too much, be smart about it, जैसे मैंने आपको गाइड किया। Now, I'm sorry, now comes the dental surgery subject wise weightage। तो हम लोग जानते हैं, ये कोई भी एग्जाम हो, नीट हो या आईएनआईसीटी हो या कोई भी पीएससीज हो, क्लिनिकल डोमेन से क्वेश्चंस, जो हमारे जो मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स फॉर ओरल सर्जरी, एंडो, कॉन्स, प्रोस्थो, यहाँ पे आपको मास्टरी रखनी ही पड़ेगी। 60% वेज आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट से ही रहता है। फिर आपके पैरा क्लिनिकल डोमेन, हमारे बहुत सारे पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे, ऐसे कोर सब्जेक्ट्स थे जो हमारा फाउंडेशन बनाते हैं टू बिकम अ गुड क्लिनिशियन। पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में ओरल पैथ एंड डेंटल मटेरियल नॉन नेगोशिएबल, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, ये आपकी बैकबोन है, यू कैन नॉट लीव इट। 20% वेटेज विल बी फ्रॉम दीज। एंड नॉन क्लिनिकल बेसिक सब्जेक्ट्स like anatomy, physiology and pharmacology are again very important, because again if आप इनको neglect करेंगे, you will lose out on ranks। ये इनसे भी टाई ब्रेकर क्वेश्चंस आते हैं, लोग इन सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं because it's been many years, but याद रखिएगा, they are also our foundation, they are our basics, right? So they are very important and they will give you the upper edge।
सो क्लिनिकल एज आई टोल्ड यू, बिग थ्री जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं विच इज एंडो, कॉन्स, ओरल सर्जरी एंड प्रोस्थो। यूपीपीएससी में ओरल सर्जरी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, where they will not only ask you simple oral surgery question, they will combine a little bit of anatomy and pharmacology. So it's all like, step by step, it is aligned. So, like back in 2018, they asked a lot of questions related to LA, how the mechanism of action is lignocaine का, आपके टिनल साइन पूछा गया था, रैमजे हंट सिंड्रोम के बारे में पूछा गया था, देन सर्जिकल एनाटॉमी स्पेसिफिकली टीएमजे बोन की पूछी गई थी। सो याद रखिएगा, दे डोंट वांट टू नो आप ये सर्जरी कैसे करेंगे, बट दे वांट टू नो क्यों करेंगे, व्हाई आर यू गोना डू इट, राइट, not just the how. Then comes cons and endo, which is again your big three subject. Cons and endo is something जो bread and butter of dentistry RCTs रहती ही है। तो आपको basic knowledge of cavity preparation, pulp and periapical diagnosis, आपको बहुत diagnosis आपको strong होना चाहिए, canal का morphology, देन एज आई सेड एजिंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, जेरियाट्रिक मतलब आप ओल्ड लोगों में क्या डिफरेंट करेंगे, आपको इस पे भी फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। एंड देन हमारा मटेरियल्स, आपको डेंटल मटेरियल्स का बहुत साउंड नॉलेज होना जरूरी है। प्रोस्थो में अगेन दे कैन आस्क यू वेरियस concepts, like for example they ask a lot of concepts related to simple denture fabrication. They may not ask you very high-fi questions on implants and whatnot, but they'll ask you very simple things which you can do at your level in a small hospital, because that is what you're going to do. आप PSCs में you will not be posted in various big hospitals, you'll be posted in smaller hospitals. तो उस हिसाब से बेसिक आपका डेंचर डिजाइन, RPD, CD में कंसिडरेशंस, आपकी बायोमैकेनिकल कंसिडरेशंस, मेंटेन करना अपने डेंचर को, इन सब नॉलेज आपको होनी चाहिए है। एट टाइम्स इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड। देन एज आई सेड पैराक्लिनिकल हमारे बहुत सब्जेक्ट्स हैं, बट हमारे टू जो हैं यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देम। ये तो हम फाइनल ईयर, आई एम सो सॉरी, BDS से ही जानते हैं। ओरल पैथ हैज ऑलवेज बीन अ वेरी बेसिक वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एंड ये सब्जेक्ट से ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सो ओरल पैथ में यू कांट मिस आउट ऑन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ऑन प्री मैलिग्नेंट लीशंस कंडीशंस, आपका OSMF, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोइडीमा, ल्यूकोप्लेकिया, रिस्क फैक्टर्स, यू हैव टू नो इट कम व्हाट में। इवन अगर आप बहुत बड़े कैंसर वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, ये बेसिक लीजन्स, देखिए आप एक छोटे हॉस्पिटल में काम करेंगे, like where I stay in Orissa, I swear to God, 85%, 90% of the people, the men, they are all betel nut chewers. OSMF occurs in these patients. So that is why these questions will be asked. Something जो आप अपने daily clinical scenario में आप इसको encounter करेंगे। वायरल डिजीजेस, रैमजे हंट सिंड्रोम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, स्प्रेड कैसा होता है वायरल डिजीजेस, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस, एनोमलीज इन टूथ, क्या आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये सब आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा पल्पल डिजीजेस, पेरियोडोंटल, पेरियपाइकल डिजीजेस एंड माइक्रोबायोलॉजी में फोकस करते हुए स्टेरिलाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। Generally, in smaller hospitals, I'm sure you can imagine, sterilization is a lot compromised compared to our bigger college dental settings. So how will you do your best to give the best treatment possible in such a situation? This is very important. Then आता है dental material, जो एक बहुत factual, very difficult subject है। Dental material हम सबके लिए tough रहा है, I'm sure. It is a very dry subject. इसमें बस फैक्ट्स हैं, याद करने को बहुत कुछ है, एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट तक याद करना पड़ता है, इट बिकम्स वेरी टेनेशियस, टफ हो जाता है। तो डेंटल मटेरियल में आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी, आपको ये कुछ टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल इंप्रेशन मटेरियल्स, हाइड्रोकोलॉइड्स के बारे में, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक्स, एलास्टोमर्स, इन पे फोकस करते हुए चलना है। आपको जिप्सम प्रोडक्ट्स पे काफी फोकस करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन वगैरह, यूजेस दीज डेज, पॉलीमर्स एंड रेजन्स, बेसिकली ऑल द प्रॉपर्टीज जो डेंचर बेसिस की प्रॉपर्टीज रहती हैं, आपको इन पे फोकस करना पड़ेगा। देन एडेशन एंड कास्टिंग, मेटलर्जी, आपको इन पे फोकस करना पड़ेगा। ऑल्सो इन द PSC एग्जाम्स दे लाइक टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन टॉक्सिसिटी। सो याद रखिएगा, एनी dental material you are reading and it is toxic in some manner, for example we all know about methyl mercury, so right, these questions are frequently asked. तो ये सब चीजों पे, ये चैप्टर्स पे डेंटल मटेरियल जो एक बहुत हाई फैक्चुअल सब्जेक्ट है, प्लीज प्लीज फोकस। नेक्स्ट आर एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, एंड इसमें हिस्टोलॉजी में आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग DADH, because again they like to ask about oral tissues, they ask
they like to ask about the proper eruption sequence, so proper morphology, because in a dental setting एक PSC में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है which stage this person is he a minor, or so you need to be really you need to be very well versed with these concepts. एनाटॉमी में आपके जो बेसिक्स, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, आपकी फेशियल नर्व, सेवेंथ नर्व, आप क्रिटिकल लैंडमार्क्स मैक्सिला मैंडिबल के, एम्ब्रियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, यू विल हैव टू गो थ्रू इट, यू कैन नॉट स्किप इट। दी इनसे टाई ब्रेकर क्वेश्चंस आएंगे। डीएडीएच में प्लीज मोर्फोलॉजी ऑफ योर टूथ एंड ऑल्सो इरप्शन सीक्वेंसेस पे प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन पल्प एंड पेरियोडोंशियम के biomechanics, biochemical properties and everything. Then physiology again, which is a very basic subject, हमारा first year का subject था। Physio में try to focus on the chapter of blood and endocrine, because हम लोग बहुत tests करवाते हैं patients को। Again, this is something जो आप clinical setting में आप अपना रोज करते हैं। So these chapters you cannot कॉम्प्रोमाइज ऑन देम। आपको पता होना चाहिए कि आप BT-CT टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को सिकलिंग प्रॉब्लम है, आप क्या क्या टेस्ट करवाएंगे, व्हाट विल यू डू डिफरेंट। सो यू नीड टू हैव योर बेसिक्स वेरी क्लियर। बायोकेमिस्ट्री में दे मे आस्क वेरियस इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म जो साइकिल्स थी आपकी, उसके बारे में दे कैन आस्क। दे आर वेरी टीडियस टू लर्न। आपको इसके बिल्कुल स्मार्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड यू विल हैव टू रिवाइज इट। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा फार्मा जो रहता है, इन द एंड ऑल ऑफ अस प्रिस्क्राइब drugs. So pharma में analgesics chapter, antibiotics chapter, and also cardiovascular health chapter, drugs related to diabetes, you cannot compromise on these. You have to read it come what may. This is not only for your theory, this is also for your interview. In your clinical everyday settings, you will be going through these. So you can pause this slide. जो मैंने explain किया, these are like the estimated questions. I have made this according to 2018 and 2023 and the recent other papers which I went through. As I said, UPPSC का I'm not going to say कि बहुत difficult level होता है, but they can ask you everything under the sun. But other PSCs like Orissa PSC, which had a higher standard paper, you need to go more in depth, and these topics आप नहीं छोड़ सकते. Other than that, you have to focus on pedo also. इसमें child psychology, fluoridation, fluoride dosages, you cannot compromise on this. आपको oral medicine, radio में भी, OPG interpretation, radiological landmarks, you cannot go wrong. Public health, आपको बहुत public health कैंप्स करवाने पड़ेंगे, अवेयरनेस ड्राइव्स करवानी पड़ेंगी। आपको छोटे छोटे PHCs में भेजा जाएगा टू इंक्रीज डेंटल अवेयरनेस, डेंटल हेल्थ के बारे में। सो यू नीड टू नो अबाउट एपिडेमियोलॉजी, you need to know about fluoridation indices, and other than that you need to know about oral squamous cell cancer. Ortho में malocclusion, growth indices, थोड़े बहुत appliances, because ortho you really cannot practice that much in a PHC or a CHC or a SDH that much. So yeah, ऑर्थो से फिर भी थोड़े कम क्वेश्चंस आएंगे, बट जो आपका बेसिक मैल ओक्लूजन डायग्नोसिस पार्ट वगैरह जो है, यू विल हैव टू प्रिवेंटिव पार्ट्स जो है, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, यू विल हैव टू गेट इनटू ऑल दैट. So this was about the syllabus. Now, one thing which we all go very wrong in is how to attempt a paper. As I said, जब question paper थोड़ा easy होता है, we all become extra brave and we all make silly mistakes. And this is what your folly will be. Negative marking मैं बार बार बता रही हूँ है. Negative marking का weightage भी ज्यादा है. It is 1/3 is your negative marks. So, you can't just be very... You can't be कि चलो मैं सारा पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा. देखिए 150 क्वेश्चंस 60% 70% एक्यूरेसी करने से बेटर है आप कम क्वेश्चंस करें, बट आप उनको 90% एक्यूरेसी के साथ करें. सो आपको कैसे रियलाइज करना है कि भाई ये मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं कि मैं इसको छोड़ दूं. एक होता है 100% भाई आई नो दिस इज द आंसर, यू विल टेक अ श्योर शॉट, यू शुड डू दैट. कम से कम व्हेन यू आर लुकिंग एट अ पेपर, and I'm not only going to talk about UPPSC, I'm also going to talk about NEET. देखिए कम से कम याद रखना, आजकल instead of having the correct answer, आजकल क्या होता है, they make such confusing options that, to be honest, there are two options generally जो answer जो सही रहते हैं. So instead of just going for the correct answer, I feel it is better these days कि आप जो आपको लग रहा है जो नेगेटिव है आप एलिमिनेट करते जाइए अपने ऑप्शंस.
जैसे अगर आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हैं क्लियर ऑप्शन, भाई ये तो आंसर है ही नहीं, यू मस्ट टेक अ शॉट, यू कैन टेक अ शॉट, यू नो। तो कोई आपको कौन सा टाइप का क्वेश्चन छोड़ना है भाई जिसके बारे में कुछ आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल यू हैव नॉट हर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट, यू हैव नो आइडिया, don't try to be extra brave unless your gut feeling is telling you to do so. But if you don't know anything about that question, uh, I feel it is better to leave it. Again, this is a very personal thing. ये आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह से ही बेटर हो जाएगी, बट डोंट मेक सिली मिस्टेक्स। कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, बिकॉज एज आई सेड आजकल कोई डायरेक्ट ये एक सही जवाब नहीं होता है, जनरली दो ऑप्शंस रहते हैं जो करेक्ट होते हैं, एक हो सकता है 40% करेक्ट हो, एक होता है 30% जो करेक्ट हो। सो आपका काम है एलिमिनेट करते जाना टू गेट टू द क्लोजेस्ट आंसर पॉसिबल। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, जो पुराने पैटर्न्स होते थे दे वर ऑल अबाउट रोट एंड रिकॉल, रट्टा मार लेते थे हम लोग, एमसीक्यू याद कर लेते थे, थियरी बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते थे, हम लोग काफी लोग एग्जाम्स निकाल लेते थे। बट नाउ इट इज ऑल वेरी एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, अप्लाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर ओरल सर्जरी का क्वेश्चन आएगा उसमें आपका फार्मा भी जोड़ दी जाएगी, एनैट जोड़ दिया जाएगा, जनरल मेडिसिन जोड़ दिया जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी एनालिटिकल, अपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी जंप मत करिएगा, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, एलिमिनेट करते जाइए। एंड अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा हमेशा रहा है, आई फील दैट द फर्स्ट आंसर जो हमारे गट में आता है दैट इज जनरली करेक्ट, दिस इज माई, आई फील सो। And generally, when I overthink and I change the answer, I always end up marking it as incorrect. So trust your gut. आपने बहुत पढ़ाई की है. Unless something very, you remember a huge point, then only you should change your answer. So try to be sure, try to take your time, rush नहीं करना है, be patient. Now, what exactly does Dental Desk Academy bring to you? So, Dental Desk Academy is launching their UPPSC oriented dental mock test. ये आप test 30th December को दे सकते हैं between 3 से 5 p.m. This is going to be totally based on UPPSC एग्जाम मोड। एज आई सेड 2 घंटे का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें वो उस टाइम का जो रियल प्रेशर है यू विल एनकाउंटर। सो आई थिंक यू शुड नॉट गिव अप दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड डेफिनेटली ग्रैब दिस टेस्ट। इससे आपको ओरिएंटेशन होगा, आपको समझ आएगा हाउ योर रियल डे विल फील लाइक। एंड एज आई सेड दिस इज द 2026 शेड्यूल फॉर योर यूपीपीएससी एग्जाम। ये एक 3 मंथ्स की टेस्ट सीरीज है, यू कैन सी इसमें बहुत सारे मॉक्स हैं, सारे 20 सब्जेक्ट्स को क्लियर किया जा रहा है। एंड इट इज, डोंट वरी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग, इसमें टॉपिक्स भी डाउनसाइज की गए हैं कि आज के दिन यही टॉपिक आएगा, एंड टोटली यूपीपीएससी पे फोकस है। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर नीड कि बहुत सारा मेडिकल जार्गन एंड जनाना है, इट इज वेरी फोकस्ड एंड आई थिंक दिस विल गिव यू अ वेरी क्लियर एज। बिकॉज याद रखना, आपके हम जैसे टैलेंटेड, हम जैसे पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, सो यू नीड टू टेक दैट एज एंड डेंटल डेस्क एकेडमी ब्रिंग्स यू द बेस्ट देयर इज। This is the ERS book. Till date, I am so grateful for this book. As you can see, इसमें बहुत सारे old papers हैं, not only from UP, but from Rajasthan PHC, Bihar, Jharkhand, Haryana, Orissa, Kerala, Chhattisgarh. All your old PSC exams, all their answers are there. There can be no better book than this. There are also SR-ship papers. कितने क्वेश्चंस होते हैं नीट में जो SR-ship के पेपर्स से डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट आते हैं। Trust me, I cannot advocate enough for this book. ये book, don't just go for it. There is nothing else I can say. This book will definitely give you an edge. पूरे साल 3-3, 4-4 एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, आपको इस बुक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। Just go for it. Don't think twice. You won't regret it. I can guarantee it. So we are also launching a NEET MDS preparation. I have had an experience in teaching and in educating children, not only children. This started back in 2018 जब मैं अपनी internship में पढ़ रही थी. I used to teach my classmates. I taught so many of my juniors, and then I became an assistant professor. So I won't say I'm the absolute best, but I know I will give my best, and I'm sure I won't disappoint. So it's a very lucrative test series which we are launching. ये अगेन 3 मंथ्स का नीट एमडीएस पे फोकस रहेगी इसमें। एंड एज वी नो, नीट एमडीएस इज शेड्यूल्ड टू बी समवेयर अराउंड द एंड ऑफ मार्च,
This will give you that edge, even though you have already enrolled in a test series. As you can see, the cost is very minimal. It will give you the extra edge. We have 100 plus CBTs, that is your computer based exams. This will give you how the real time pressure feels like during an exam. आपके recalled MDS के जो questions है 2017 onwards वो इसमें है. Proper 3 CBT mock tests हैं and lot of critical points जो last में which I just kept telling you, जो आपको revise करने हैं, जो हम लोग भूल जाते हैं, and यही आपके rank को पीछे लेके जाते हैं. So again, this is our team's effort to give you the best and to get the best out of you. And regarding the most common doubt जो सारे बच्चों को होता है, which is regarding registration. सब क्या करते हैं, कोई भी PSC एग्जाम हो रहा है, स्टेट PSC एग्जाम, एवरीबडी विल बी टेंस कि भाई हम एलिजिबल होंगे कि नहीं, हम दे पाएंगे कि नहीं. देखिए, according to the DCI Act, as you can again pause on this slide, 2019 में DCI ने डिक्लेयर कर दिया था, go through this slide, that any dentist, even though they are from outside your state, they are eligible. आप ये एग्जाम दे सकते हैं. तो आप भले ही कहीं और स्टेट के हो, एग्जाम आप दे सकते हैं. नो डाउट, वंस यू क्लियर दैट एग्जाम, आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा, जनरली 30 से 45 डेज होता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवानी पड़ेगी. नो स्टेट कैन फोर्स यू कि नहीं आप पहले से ट्रांसफर करवाइए. आई नो थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट, दैट इज वाई सब पैनिक करते हैं, सब डरते हैं. बट सी, दिस इज नॉट द मेन फोकस. द मेन फोकस इज भाई पहले आप एग्जाम क्रैक करिए. For example, Orissa was very flexible, so was UP regarding this. They all gave us time, or a time of around 30 days to 45 days to transfer our registration. So, first of all, your first priority should be कि भाई मैं seat पाऊं. Then आप ये सब करेगा. So, yes, I know this is a cause of concern, but doesn't mean कि you lose your sleep over it. पहले main thing main रखिए. Start with why. अपना how हमने explain कर दिया है. How to go about it. You can join us at Dental Desk Academy and we'll get the best out of you. That is our guarantee. And the rest is all up to you. So give your best and all the very best. It was my pleasure. Thank you so much. Jai Hind.